not to discuss that what has happened in Pakistan or what has happened with the local governments in Pakistan. The idea is to discuss that how to move forward and actually to navigate something. That if emphasize that your national security will not be complete unless it rests on the pods of traditional defense, economic security, and human security. With millions of children of Pakistan out of school, you can imagine what kind of human security we are talking about. The second element that I want to mention is how do you define national purpose? There are only three things I would say. Number one, devolution to the local level. Number two, give up on the state's central functions. Don't expect too much from that. If the state can just get out of the way of good work, that's good enough. And third, somehow bring back the basic concept of citizenry and civic sense in our society. हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बतानी, लेकिन पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इट्स बिन यूज्ड ट्रेडिशनली by military governments to sweep out the the current political class and bring in a new crop. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये खाली लिख के छोड़ देते हैं and you stipulate that the provincial governments will have their own local government acts, which is very fair. provincial governments को दे दिया, लेकिन आप ये नहीं बताते कि what administrative powers, what financial powers, what political powers, तो फिर अंडा पराठा नहीं बनेगा क्योंकि competing interest है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टियर है वो लोकल गवर्नमेंट का है। प्रोविंसेस ना भी हों तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जज्बाती हुए बगैर अगर हम सोचें, लेकिन लोकल गवर्नमेंट अगर ना हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी पेक्यूलियर जो सियासत है जो इधर डेवलप हुई हिस्टोरिकली, वो सूबों के गिर्द थी। 1940 का आप रेजोल्यूशन देख लें, यहाँ पे जो हिंदू मुसलमानों का जो झगड़ा था, उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो एक सेंटर स्टेज थी, और उसकी अल्टीमेट कल्मिनेशन जो हमारे पाकिस्तान में आके 18वीं तरमीम में 2010 में होती है। आर्टिकल 7 को भी और आर्टिकल 140A को भी एक्सपेंड करें और लोकल गवर्नमेंट का टियर भी इंट्रोड्यूस करें और उसकी पावर्स भी डेजिग्नेट करें ताकि एनएफसी जो है वो भी आगे से उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज भी दें। पॉलिटिशियन सारा एलिगेशन बाबू पे डाल रहे हैं और बाबू ये समझता है कि अवाम जो है वो इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, और यंग लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि मेयर क्या है। लेकिन सर हमारा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि सर हम जैसे जो लोग या जो और लोग हैं वो अगर आज के दिन फैसला कर लें कि वो सियासत में कदम रखना चाहते हैं तो व्हाट एवेन्यूज डू दे हैव? आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर पाबंदी है, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कैसे होगी, यंग लीडरशिप हमारे पास कैसे आएगी? What it takes to develop a citizen-centric approach among the politicians, among the bureaucrats of this country, so that actually the people for whom we are all working, I mean the citizens of this country, they somehow get benefit out of it. The problem, I think, is here to first rationalize the conflict of interest within the political parties. तो हमें ये इस चीज़ का इदराक नहीं है या इस चीज़ की समझ नहीं है कि मुखालिफ राय को एब्जॉर्ब करना एक अहम चीज़ है डेमोक्रेसी में, और उस राय को सामने लेकर भी आना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से शायद आपको कोई चीज़ छोटी सी अच्छी मिल जाए जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकें। State's ability to govern has eroded greatly, whether it is governing traffic, whether it is governing immigration, and you name it, and whether it is security. So there is the government, and then we have the state structure. What measures can we take so that we give opportunities to those voices and their recommendations are honored and integrated into the framework? Because locals are one of the most important stakeholders, and you just can't impose policies. जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस है, अगर हम उस पर बात करें तो हम बड़े सालों से पाकिस्तान में ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिल्कुल कंसेंसस है भी नहीं और होना भी नहीं है। ना ही पाकिस्तान में अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी ख़तरा है लोकल गवर्नमेंट। तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो 1000 गुना ज़्यादा डेमोक्रेट थी हमारी आज की पॉलिटिकल पार्टी से। मिसाल के तौर के ऊपर कांग्रेस का सदर हर साल नया बनता था और 4 आने की कंट्रीब्यूशन जो है वो होती थी। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके छोटे से छोटे विलेज का छोटा जो हिस्सा है उसके आखिरी फर्द को एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसकी नहीं होती और उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी जो लीडरशिप है, दैट इज टेकिंग द कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। And maybe our dreams may not be fulfilled in our lifetime, but our future generations' dreams will be fulfilled as the country develops. फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं करता। और ये बल्दियाती इदारे नहीं है, ये याद रखिए 18th अमेंडमेंट के बाद ये लोकल बॉडीज नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट है। अगर आपने इनको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट समझना है तो फिर इनको पावर करना पड़ेगा। मेड बी सुप्रीम कोर्ट्स और मेड बी हाई कोर्ट्स और मेड बी एनी एकेडमिक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करती है, तो स्टेट की जो कॉम्पोजिशन है वो जिस तरह से वफाक है, जिस तरह से सूबा है, ऐसे मकामी हुकूमतें भी हैं। कैसे मुमकिन है? आपने इर्द गिर्द तकाबली जायज़ा लेना था। 80 से ज़्यादा अफराद मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी ज़रूरी बात है, हम इसमें लाजमी तौर पे इस लोकल गवर्नमेंट के कॉकस का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम इसका आइनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव of their political divide.